الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز حضرات، نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے غزوہ موتا اور فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. معرکہ موتا یہ اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم معارک میں سے اس زمانے میں، اس دور میں کوئی شخص بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے اور رومیوں سے کسی کو فتح بھی مل سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے حارث بن عمیر ازدی، بڑا مشہور قبیلہ ہے ازدی، تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط مبارک دے کے حاکم بصرہ، اس کے حوالے سے ہم پچھلی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، ان کے پاس روانہ کیا. تو جس وقت حارث یہاں پہنچتے ہیں موتا کے قریب، یہ موتا جو ہے یہ اردن کے اندر عمان سے کم و بیش تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو جس وقت وہاں جاتے ہیں تو وہاں کا گورنر شرجیل بن عمر غسانی، اس نے ان کو شہید کر دیا. اور یاد رکھیے کہ آج بھی اور اس زمانے میں بھی جو نامہ بر ہوتا ہے، جو ایلچی ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا یہ اعلان جنگ کی برابر ہوتا ہے. تو معمولی بات نہیں ہے بھئی، تم ایلچی ہے، یہ ایلچی کی عزت کرنی چاہیے. پیغام لے کے آیا ہے، رسالہ لے کے آیا ہے، خط لے کے آیا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جس وقت پتہ چلا تو آپ نے، اب یہاں پہ دیکھیے یہ فرق ہے کیا. ہمارے آج کے دور کے اندر کتنے ہی مسلمانوں کو ظلم، تشدد، ناجائز قتل ہوتے ہیں. اس کے جواب میں زیادہ سے زیادہ پہلی بات ہے حکومتیں احتجاج کرتی نہیں ہیں، اور بڑا ہی اگر کسی نے جرأت کا مظاہرہ کریں تو ایک مذمتی پیغام ٹیلی ویژن کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر کر دیا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو جس وقت پتہ چلا کہ میرے ایلچی کو شہید کیا گیا ہے، تو آپ کا رد عمل یہ تھا کہ آپ نے 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو موتا کی طرف روانہ کروایا. اس کا لشکر کا جو سپہ سالار نبی علیہ السلام کے انتہائی محبوب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مل کر. حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ شدید محبت تھی، بالکل اسی طرح جیسا اپنی اولاد کے ساتھ. اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو ان کے بعد ان کی نیابت یا اسلامی لشکر کا جھنڈا وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہو. اور حضرت جعفر کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا بھائی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، 10 سال بڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ یہ فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کی جگہ جعفر جو ہیں وہ کمان سنبھالیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر جعفر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے تیسرے نمبر میں مقرر کروایا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ، جس مقام پہ ہمارے ایلچی کو شہید کیا گیا ہے اس مقام پر پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت. اگر وہ اسلام قبول کریں بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں اسلام قبول کرتے تو پھر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی. اور یہاں نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، مجاہدین کو جنگوں کے بارے میں ایک ضابطۂ عمل کہہ دیجیے، ضابطۂ اخلاق آپ ان کو بتا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ تم لوگوں نے جنگ کرنی ہے. اور پھر فرمایا دیکھو بدعہدی نہ کرنا،
खयानत ना करना, किसी औरत, किसी बच्चे या इंतहाई बूढ़े आदमी को आपने कत्ल नहीं करना है। वो लोग जो गिरजों के अंदर हैं उनको भी आपने फरमाया कि उनको तारकुद दुनिया है, उनको आपने कत्ल नहीं करना है। और फिर फरमाया आपको कोई खजूर, किसी दरख्त को आपने नहीं काटना। ये है वो इस्लामी तालीमात मेरे अजीजों जो नबी अलैहिस्सलाम एक दुश्मन को दे रहे हैं। बरसरे पैकार दुश्मन है, लेकिन उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम एक ज़ाब्ता अखलाक, जंग का ज़ाब्ता मुकर्रर कर रहे हैं। आपने ये तरीका अख्तियार करना है। उस वक्त जिस वक्त इस्लामी लश्कर रवाना होने लगा है तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? जरा जवाब सुनिए कि इस हालत में भी आखिरत की फिक्र क्या है। कहने लगे असल में बात यह है कि मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मन मक़दिया, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स जहन्नम पर वारिद होने वाला है। ये तुम्हारे रब पर एक लाज़मी और फैसला की बात। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और उस दुआ का खुलासा ये है, वो कहते हैं कि मैं अपने रहमान के रब के हजूर इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह मुझको बख्श दे और मेरा मुकाबला जो है एक ऐसे दुश्मन के साथ हो जो दुश्मन मेरी हड्डियों को तोड़ दे, नेज़ा मेरे सीने के अंदर भोंक दे, और जब लोग मेरी कब्र पर आए, वहां से गुजरे, तो कहें हाय वो गाजी है जिसे अल्लाह ने हदायत दी और जो हदायत याफ्ता। नबी अलैहिस्सलाम ने इस लश्कर को ये एजाज बख्शा कि आप जब लश्कर रवाना हुआ तो सनियतुल वदा तक नबी अलैहिस्सलाम पैदल तशरीफ ले गए। मैंने पहले अर्ज किया कि जिस वक्त ये लश्कर रवाना होता है उसके साथ ही जसूसों ने रूमियों को भी इतला दे दी और 1 लाख रूमी वो मुकाबले में आते। ये तो वो लोग हैं जो खैमजन है। 1 लाख और रूमी है जो कबाइले अरब पर मुश्तमिल है। जरा गौर कीजिए अजीजों, एक तरफ 2 लाख की फौज है और एक तरफ कितनी फौज है? 3,000 की। अब कुछ तसव्वुर कर सकता है कि 3,000 जो है वो मुकाबला किसके साथ करने जा रहे हैं? 2 लाख के साथ। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इवन मुसलमानों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि हमारा मुकाबला एक बहुत बड़े लश्कर जर्रार से होगा, लेकिन मुसलमान वहां पे पहुंच चुके हैं। मेरे लिए ये वाक़या सादत है कि मैं 2 दफा इस मूता के मैदान में गया हूं। हकीकत में अजीजों, मुझे शर्फ भी है, मैं बड़ा जज्बाती हूं इस मामले में कि कहां 2 लाख की फौज और 3,000 का लश्कर, और फिर उसके बाद हम इसके नतायज इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि ये अबाबील जो है उनको हाथी के साथ लड़ाने वाली बात है। तो जिस वक्त लश्कर वहां पहुंचता है मुसलमानों को पता चला कि 2 लाख, बहरहाल कोई अहम खाना बातें तो नहीं थी। जो मजलिस शूरा थी वो इकट्ठी हुई, बैठे, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने इस बात का सोचो विचार किया कि नबी अलैहिस्सलाम जो है उनको लिखा जाए, आपसे मदद तलब की जाए, आपको कहा जाए कि हमारा 2 लाख फौजियों के साथ मुकाबला है। लेकिन वही हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि शहादत के बड़े मुतमन्नी थे, उन्होंने इस राय की मुखालफत कर दी और ये कहकर लोगों को गरमा दिया। कहने लगे, लोगों अल्लाह की कसम, जिस चीज से आप कितरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तरफ भी आप निकले। गोया मोमिन जो है उसके सामने सबसे बड़ा अहम जो नुक्ता है जिससे वो अपने घर से निकला है वो शहादत है। और फिर कहते हैं, याद रहे दुश्मन से हमारी लड़ाई तादाद, कुव्वत और कसरत के बल पर नहीं, बल्कि हम महज इस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें मुशर्रफ किया है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है इस्लाम की बदौलत। और अजीजों, इस मौके पर मैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन अल्फाज को दोहराऊंगा जो हजरत उमर फारूक कहा करते थे कि नहनु कौमन अअज़्ज़अल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की बदौलत इज्जत बख्शी। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं कि 2 ही सूरतें हैं, या तो हम गालिब होंगे और या फिर हम
मैदान के अंदर जब लड़ाई शुरू होती है तो मैंने पहले अर्ज किया कि 2 लाख और इधर 3,000, लेकिन दुनिया फटी फटी निगाहों से देख रही थी कि जब ईमान की बातें बाहर चलती है तो फिर इस किस्म के अजाबात ज़हूर पेश होते हैं। ज़हूर में आते हैं इस किस्म की चीजें। सबसे पहले नबी अलैहि सलाम के चहेते आपके महबूब हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने झंडे को थामा और दुश्मन के साथ मुकाबला करते हैं। इंतहाई बेजिगरी के साथ लड़ते हैं और इस तरह लड़ते हैं कि उसकी लड़ाई की कोई मिसाल नहीं। लड़ते रहे हत्ता कि दुश्मन के नेज़ों में घुस गए और जामे शहादत नोश करवाकर जमीन पर आए। जैसे वो शहीद होते हैं, नबी अलैहि सलाम की वसीयत के मुताबिक हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बारी है, उन्होंने झंडे को ऊंचा कर दिया। ये लड़ते हैं और इस तरह जंग करते हैं कि जिस वक्त जंग अपने अरूज को पहुंच जाती है तो अपने सुर्ख और सियाह घोड़े की पूंछ से नीचे उतर पड़ते, कूद पड़े, घोड़े की टांगों को काट दिया, ऊंचे काट दिया और वार पर वार करते और दुश्मन के वार को रोक देते, यहां तक कि दुश्मन की जरब से आपका दायां हाथ कट जाता है। इसके बाद झंडा उन्होंने बाएं हाथ के अंदर पकड़ लिया। जब बायां हाथ कट गया तो उसके झंडे को अपनी आगोश के अंदर दिया। ये झंडा आम झंडा नहीं है अजीजों, ये इस्लाम का झंडा है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा है। इसको हर हालत में हमने सरबलंद रखा है। मौलाना लिखा है कि एक रूमी ने उनको ऐसी तलवार मारी कि उनके 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह ताला ने उनको उनके दोनों बाजुओं की इवज़ जन्नत के अंदर 2 बाजू अता फरमाए जिनके जरिए वो जहां चाहते हैं उड़ते फिरते हैं। इसलिए उनका लक़ब जाफर तैयार पड़ जाता है। जब बात करते हैं हम कहते हैं क्या, जाफर तैयार। और जाफर तैयार का माना क्या है, जो उड़ने वाला होता है। यहां पर जो पायलट है ना, जहाज को चलाता है, उसको क्या कहते हैं, तैयार। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जंग मूता के बाद जब जंग खत्म हुई तो हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबकि वो शहीद हो चुके थे, खड़े होकर उनके जिस्म पर नेज़े और तलवार के 50 जख्म सवार किए और कहते हैं कोई ऐसा जख्म नहीं था जो उनकी पुष्ट पे लगा हो, सारे जख्म उनके सीने के ऊपर लगे। और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो झंडे को थामते हैं और फिर अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो अशार पढ़ते हैं, रज्स पढ़ते हैं और कहते हैं ए नफ्स कसम है कि तू जरूर मद्दे मुकाबल उतर, खा नागवारी के साथ खा खुशी के साथ। और फिर इस खूबसूरत अंदाज में जंग करते हैं। जंग के दौरान लड़ रहे हैं दुश्मन के साथ। इनके चचेरा भाई एक गोश्त लगी हुई हड्डी, पका गोश्त होगा, उसको लेके आए, कहने लगे मेरे भाई इसको खाओ, इस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें कुव्वत ताकत मिल जाएगी। चुनाचे उन्होंने थोड़ा सा हड्डी को लेकर नोचा, उसको फेंक दिया और उसके बाद लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं अर्ज किया कि मैं 2 दफा इस मैदान के अंदर पड़ा, बहुत ही खुला मैदान, बहुत खुला मैदान। वहां पर आज कल उर्दन की हुकूमत ने डिफेंस कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज बना रखा है और एक उन्होंने यादगारी उन्होंने दीवार बनाई है जिसके ऊपर शुहदा के नाम लिखे हुए हैं। मैं बड़ी देर तक वहां पे खड़ा रहा इस मैदान के अंदर, सोचता रहा वो क्या लोग थे। और फिर मुझे याद है कि मैंने एक दफा मौलाना सफीर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह से, मैंने मौलाना मुझे मेरी अकल नहीं समझ आती कि ये कैसे जंग हुई, ये कोई छोटी सी जंग थी। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने किस तरीके से मुसलमान फौज को बचाया और मुसलमान को फौज को खैर वफियत के साथ वापस मदीना लेके आते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद
बनु अजलान बड़ा मशहूर कबीला है, आज भी सऊदी अरब के अंदर बनु अजलान कबीला मौजूद है। इसके साबित बिन अरकम नाम के एक सहाबी ने झंडे को उठा दिया और कहने लगे, मुसलमानों अपने में से किसी को सिपा सलार बना दो। तो सहाबा ने कहा कि आप ये काम सर अंजाम दें। कहने लगे, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। और उसके बाद सहाबा कराम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कायद, अपना लीडर मुंतखब कर दिया। हजरत खालिद कहते हैं कि जंगे मूता के दिन मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें। इससे ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस बहादुरी के साथ हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन का मुकाबला किया। और कहते हैं कि आखिर में मेरे हाथ में एक यमनी छोटा सा बाना, छोटी सी तलवार मेरे हाथ में रह गई, वरना लड़ लड़ के दुश्मन को जो है वो खत्म करते हैं। इस जंग का खात्मा वो कैसे हुआ, और वही बात आपको बताने वाली है। जिस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में क़यादत आती है, तो हजरत खालिद बिन वलीद इंतहाई समझदार, रहीन, फतीन लीडर थे, शुजा, बहादुर कमांडर। उन्होंने सोचा दुश्मन जो है वो तुम्हारा 2 लाख है, वो चूड़ियां पैर में नहीं आए हुए थे। उन्होंने एक दिन जंग, शाम तक जंग हुई, अगले दिन फिर जंग हुई। तो हजरत खालिद बिन वलीद सोचते रहे कि किस तरीके से मैं अपनी फौज को भी बचाऊं और उसके साथ ये भी ना हो कि दुश्मन हमारी फौज के ऊपर कब्जा कर सके और हमें ये भी जाहिर होना हो कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद अगला दिन हुआ तो उन्होंने क्या किया, मैमना और मैसरा, जो आगे फौज लड़ने वाली थी उसको पीछे कर दिया, जो पीछे फौज थी उसको आगे कर दिया। और फिर उसके बाद मैमना को मैसरा के साथ और मैसरा को मैमना के साथ बदल दिया। जब दुश्मन के साथ मुकाबले में आए तो दुश्मन चौंक गया, तो अरे लगता है कि मुसलमानों को पहुंच गई, मदद पहुंच गई पीछे से। और जंग शुरू हुई तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। दुश्मन ने क्या समझा? दुश्मन ने यह समझा कि ये मुसलमानों की चाल है, मुसलमान हमें, मैंने किया बहुत बड़ा खुला मैदान है, उस मैदान के बाद पहाड़ी इलाका है। तो दुश्मन ने कहा कि मुसलमान हमें जो है वो पीछे पिछपा हो रहे हैं जानबूझ के, ताकि हम उनका पीछा करें और पीछे इनकी फौजें छुपी हुई हैं, लिहाजा ये हमारे ऊपर हमला करके हमें शिकस्त दे देंगे। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपने साथियों को बचा के मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। याद रहे कि बावजूद इस बात के मुसलमानों को नुकसान पता कितना हुआ? सिर्फ 12 आदमी शहीद होते हैं, सिर्फ 12। मौलाना ने लिखा कि काफिरों के बारे में कोई पता नहीं। हम इससे अंदाजा कर सकते हैं कि सिर्फ अकेले खालिद बिन वलीद के हाथों 9 तलवारें टूटती हैं तो उन्होंने कितने आदमी को कत्ल किया होगा। लेकिन यहां पे ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जिस वक्त ये लश्कर पहुंचता है तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इब्न अव्वाम के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, छोटी सी उम्र की उनकी, 8 साल उम्र की उनकी, छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका इस्तकबाल पता कैसे करते हैं? छोटी छोटी कंकरियां पकड़ी उनको पत्थर मार रहे हैं, या फरार, अब फरार तो मेरा मौत, फरार होके आ गए हो, मौत से डर के आ गए हो। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला था, आपने फरमाया फरार नहीं बरकरार। जिस तरह बच्चा अपनी मां की आगोश में आ जाता है, इस तरह ये लश्कर अपने घर जिंदा सलामत सही तरीके से वापस पहुंच गया। मेरे अजीजों, इस मार्के के जो नताइज हैं वो मुसलमानों के हाथ बड़े मजबूत हो गए। पूरे इलाके के अंदर कोई आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, उनके यहां भी ये था, रूमी भी ये समझते मुसलमानों की अरबों की हैसियत क्या है, अरब तो इंतहाई बुज़दिल थी उनके सामने। लेकिन ये वो मुसलमान थे जिन्होंने बड़ी थोड़ी तादाद होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे कबाइल
जो कल तक मुसलमानों के दुश्मन थे, इस्लाम के करीब आने शुरू हो गए। चुनांचे हम देखते हैं बनु सलैम, अश्जा, गुतफान, ज़बियान, फज़ारा, ये तमाम कबाइल इस्लाम कबूल करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद ग़ज़वाए मूता के बाद जो सबसे अहम वाक़या पेश आता है नबी अलैहिस्सलाम की हयात तजरबा के अंदर, वो फतह मक्का। फतह मक्का, इसके बारे में ये ज़हन-नशीन कर लें कि ये एंड था, आखिर नबी अलैहिस्सलाम की सारी जद्दोजहद, कामयाबियां 8 हिजरी के अंदर फतह मक्का होता है। हम सुलह हदैबिया के अंदर अर्ज कर चुके हैं कि सुलह हदैबिया की शराइत में से एक शर्त यह भी थी कि जो कबीला मुसलमानों के साथ शामिल होना चाहे मुसलमानों के साथ शामिल हो जाए, और जो कबीला काफिरों के साथ शामिल होना चाहे मुशरिकीन के साथ, उनके साथ शामिल हो जाए। चुनांचे 2 बड़े कबाइल, बनु खुज़ा, ये मुसलमानों के साथ इत्तेहाद का ऐलान करता है, कहता है हम आपके साथ, और बनु बकर, ये कबीला मुशरिकीन के साथ इत्तेहाद का ऐलान करता है। उसके अंदर ये भी एक शर्त थी, और ये शर्त ये भी लिखी गई थी कि अगर इस कबीले के ऊपर, मसलन अगर बनु बकर के ऊपर कोई हमला करता है तो कुरैश उसका दिफा करेंगे, और अगर बनु खुज़ा के ऊपर कोई हमला करता है तो वो हमला बनु खुज़ा के ऊपर नहीं बल्कि मुसलमानों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और मुसलमान उनका दिफा करेंगे। आपको पता है कि जिस वक्त सुलह हदैबिया हुई, हर तरफ अमन व अमान कायम हो गया, सुलह हो गई, आपस में लोग खैर वफियत के साथ सफर करने लग गए। बनु बकर की और बनु खुज़ा की बड़ी पुरानी आपस में लड़ाई, आपस में जंग चली आ रही। तो जिस वक्त दोनों फरीक मुतमिन हो गए तो बनु बकर ने इस मौके को गनीमत समझते हुए ऐसा किया कि बनु खुज़ा के ऊपर हमला कर दिया। अब कुरैश की बदकिस्मती कि कुरैश ने रात के अंधेरे में उनकी अमली तौर भी मदद की और उनको हथियार भी फराहम की। ऐसा हुआ कि बनु खुज़ा के कुछ लोग जो हैं वो भागते हुए हरम के अंदर आ गए। आपको पता है कि हरम का तरीक़ेकार ये था कि कोई दुश्मन भी अगर आ जाता था तो उसको भी पनाह मिल जाती। चुनांचे रात की तारीकी में जिस वक्त लोग हरम शरीफ के अंदर पहुंचते हैं तो बनु बकर के एक आदमी ने, नौफल था उनका जो लीडर, उसने कहा अब तो हम हरम में अंदर दाखिल हो चुके हैं। उसने कहा कि छोड़ दो। तो नौफल ने बड़ी बात कही, उसने कहा बनु बकर आज कोई इरादा नहीं, अपना बदला पूरा कर लो, बदला चुका लो, मेरी उम्र की कसम। तुम लोग तो वो हो जो हरम में चोरी करते हो, तो क्या हरम में अपना बदला नहीं ले सकते? चुनांचे बनु खुज़ा के ऊपर जुल्म होता है, ज्यादती होती है। कुछ लोग जो हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं, कहां? मदीना शरीफ। और नबी अलैहिस्सलाम को इससे पहले आपको खबर मिल चुकी थी, जबरील अमीन ने आपको बता दिया था। अमर बिन सालम बनु खुज़ा का लीडर कह दीजिए, कायद कह लीजिए, ये नबी अलैहिस्सलाम की जब खिदमत में पहुंचता है तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अमर बिन सालम तेरी मदद की गई। और उसके साथ ही आसमान के ऊपर बादल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तकवार से काम लेते आपने फरमाया, ये बादल बनु काब की मदद की बशारत से दमक रहा है। कुछ अरसे के बाद कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी आके नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है, कुरैश ने भी उनका साथ दिया है, बनु बकर ने हमारे इतने आदमी कत्ल किए हैं। अब देखिए, अबू सुफियान बहरहाल दुश्मन था, लेकिन बंदा बड़ा सही था, इंतहाई समझदार। बल्कि मैंने आपको कई दफा अर्ज किया कि जो अरब के इंतहाई ज़हीन आदमी थे उनमें एक अबू सुफियान भी था। जब ये खुली बदअहदी होती है तो कुरैश को भी अंदाजा हो गया कि हमने बहुत ज्यादती की, हमने जुल्म किया है, हमने बदअहदी की है। चुनांचे उन्होंने अबू सुफियान को भेजा मदीना शरीफ
کہ जाओ जाके सुलह की तजदीद करो। अबू सुफियान जिस वक्त पहुंचता है मदीना शरीफ के अंदर तो सीधा अपनी साहबजादी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, अबू सुफियान की बेटी थी, सीधा अपनी बेटी की घर आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा हुआ था, अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लगा तो सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसके बिस्तर को लपेट दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को लपेट दिया। अबू सुफियान हैरान हो गया, उसने कहा बेटी ये क्या है? उसने कहा कि क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है या मैं बिस्तर के काबिल नहीं हूं? बाप ने कहा अब्बाजान आप मुशरिक हैं, आप नजस हैं, आप पलीत हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, ये पाक है, आप इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। तो अबू सुफियान ने इतने कहने लगा खुदा की कसम मेरे बाद तुम्हें शर पहुंच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपसे गुफ्तगू की लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गया, उनसे जाके बात की, उन्होंने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उसके बाद आता है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फारूक ने जब उनकी बात सुनी तो कहने लगे अल्लाह की कसम अगर मुझे लकड़ी के एक टुकड़े के सिवा कोई चीज दस्तयाब ना हो तो भी मैं उसके साथ तुम्हारा मुकाबला करूंगा। फारूक की शान क्या है, इंतहाई काफिरों के बरसक। कहने लगे अगर मेरे पास तलवार ना भी हो, लकड़ी का एक टुकड़ा हो तो उस टुकड़े के साथ भी मैं तुम्हारे साथ जहाद करूंगा, मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। अबू सुफियान वहां से मायूस होकर हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाता है, उनके घर में जाता है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मौजूद थी, हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटे थे। तो अबू सुफियान ने कहा अली मेरा तुम्हारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, करीबी रिश्तेदार है हम, मैं एक जरूरत से आया हूं, ऐसा ना हो कि मैं नामराद वापस चला जाऊं। और पूछा किसका मकसद की है? उसने कहा ऐसा करो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश करो। तो हजरत अली ने कहा अबू सुफियान तुझ पर अफसोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का अज़म कर लिया है, अब हम इस बारे में उनसे कोई बात नहीं कर सकते। फिर के बाद वो सैयदा फातिमा की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला कि आप ऐसा कर सकती हैं कि अपने बेटे हसन को ये बात कहें, उनको ये हुक्म दें कि वो लोगों के दरमियान पनाह देने का ऐलान करके हमेशा के लिए अरब के सरदार बन जाए। तो सैयदा फातिमा ने भी बात कहने लगी कि मेरा बेटा भी छोटा है, वो इस दर्जे को नहीं पहुंचा है, वो इस किस्म की गुफ्तगू करे। उसके बाद वो हजरत अली से पूछते हैं कि मैं अबुल हसन ये बताओ कि हालात बड़े संगीन हो गए, मैं क्या कर सकता हूं? तो हजरत अली ने कहा कि तुम बनु कराना के सरदार हो, खड़े होकर लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर दो। अबू सुफियान मस्जिद नबी के अंदर जाता है और उसने कहा कि हम इस मुआहदा को दोबारा बहाल करते हैं और मैं अमान का ऐलान करता हूं, और उसके साथ ही वापस आ जाता है। उसको इस बात का पता चल चुका था कि अब हमारे ऊपर वक्त आने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला को हुक्म दिया कि आप सफर की तैयारी करें। यहां पे ये बात नोट कीजिए कि बात चीजें ऐसी होती हैं जो हर किसी को बताने वाली नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसमें प्लानिंग थी या स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि अचानक मक्का के ऊपर हमला किया जाए, किसी को बिल्कुल पता नहीं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर की तैयारी कर रही हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो आपके घर में दाखिल होते हैं। कह लगे बेटी ये तैयारी किस किस्म की है? कह लगे मुझे नहीं पता। तो पूछने लगे कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूमियों के साथ जंग करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं? तो सैयदा फरमाती हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। और उसके साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह कुरैश को हमारी नक्लो हरकत का कोई पता नहीं चला। मदीना शरीफ के अंदर हंगामी हालत का ऐलान किया जाता है और
जाओ मदीना के बाहर जितने रास्ते आने वाले या जाने वाले थे, उन रास्तों के ऊपर आदमी बैठा दिए गए। कोई शख्स मदीने से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि अगर कोई बाहर जाएगा तो इस बात का अंदेशा है कि खबर पता चल जाएगा कि मुसलमान मक्का के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं। इसी दौरान में एक वाक़या पेश आता है, वो ये है, सारा नाम की एक लौंडी थी, ये मक्का से आती है मदीना के अंदर कुछ मांगने के लिए। जिस वक्त ये वापस जा रही है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बल्ता, ये बदरी सहाबी हैं, लेकिन याद रखिए कि इंसान होने के नाते से गलतियां हो सकती हैं। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला ने खत लिखा। उस खत के अंदर मक्के वालों को ये मतलह किया कि मुसलमान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा आपने तैयारी करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की बुनियाद पर आपने हजरत अली, हजरत मकदाद, हजरत जुबैर इब्न अल-अव्वाम और हजरत अबू मरसद, इनको हुक्म दिया। आपने फरमाया कि एक औरत मक्के के रास्ते पे है, जाओ जाके उसके पास एक खत है, उस खत को लेके आओ। ये घोड़ों के ऊपर बैठे तेजी के साथ गए। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो औरत तुम्हें मिलेगी, वहां वो औरत वाकई मिल गई, ऊंट के ऊपर सवार। उन्होंने उस औरत से कहा कि वो खत निकालो। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। उन्होंने कहा नीचे उतरो। ऊंट की तलाशी ली, उसके ऊपर जो हौदा बना होता है, औदत, उसकी तलाशी ली, कोई खत नहीं बरामद हुआ। मायूस हुए, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, वो माज़अल्लाह झूठे नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पास खत है, ये कैसे हो सकता है? कहने लगे देखो वो खत हमें निकाल दो, अगर तुमने वो खत न निकाला तो हमें खत निकालना आता है, अगर हमें तुम्हारे कपड़े भी उतारने पड़े तो भी हमने खत जो है वो तुमसे बरामद करना है। जब उस औरत ने सुना, उसको पता चला, उसने कहा अपना मुंह पीछे किया। उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ किया तो उसने अपने बालों के जो क्या कह लीजिए चुटिया, उसमें से उस खत को निकाला और उनके हवाले कर दिया। उस खत के अंदर जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मुशरिकीन को इत्तला दी गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने के लिए मक्का शरीफ आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब बिन अबी बल्ता को बुला लिया। आपने पूछा हातिब ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे बारे में जल्दी न करें। कहने की असल बात यह है कि मेरा वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने अहले मक्का को फिर एहसान करूं और मैं उनको इस बात की इत्तला दे दूं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह के रसूल मुझको इजाजत दें, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उतार दूं, ये मुनाफिक हो गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुम्हें नहीं पता, ये बदर के अंदर शरीक था, बदर के अंदर हाजिर हो चुका है, और हो सकता है अल्लाह ने अहले बदर को देख कर कहा हो तुम लोग जो चाहो करो, मैंने उसको बख्श दिया। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की आंखें अश्क बार हो गई। कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। 10 रमजान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना छोड़ते हैं और आपके साथ 10,000 सहाबा इकराम। कहाँ वो कायनात के इमाम छुपते छिपाते मक्का से निकले हैं, रात के अंधेरे के अंदर गारे सौर से छुपते हुए निकले हैं, और कहा आज कैफियत यह है कि 10,000 का लश्कर जाफा के मकाम पर जब पहुंचते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वो भी मुसलमान होकर अपने बच्चों समेत मदीना जा रहे थे, आपस में मिल जाते हैं और वहां से वो भी मक्का की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे। रास्ते में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भाई, उनका नाम था अबू सुफियान बिन हारिस, ये मिलते शदीद इस्लाम को दुश्मन। अबू सुफियान बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई बड़ा दुश्मन, आपके खिलाफ शेर कहने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, माफी मांगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत से मुंह फेर दिया और आपके
सफर के अंदर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा, मेरे अपने मुताले की हद तक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद उम्मे सलमा जो है सबसे ज्यादा इंतहाई ज़हीन फतीह, बहुत बड़े बाप की बेटी, बनु मखूम की, बड़े खानदान की, बड़े अजीम बाप की बेटी। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनके बारे में आता है, या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहने लगे कि ऐसा करो कि नबी अलैहि सलाम के पास जाओ और उनसे जाके वही बात कहो जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने उनके सामने कही कि तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमको, आपको हम पर फजीलत बख्शी है और हम यकीनन खताकार थे। इस वक्त उन्होंने ये बात कही तो नबी अलैहिस्सलाम ने वही बात जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही थी कि ला तसरीब अलैकुम अल-यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आपने फरमाया आज तुम्हारे ऊपर कोई सरदर्द नहीं है, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा किराम रोजे थे, आपने रोजा रखा हुआ था, सफर की हालत में रोजा रखा हुआ था, गर्मी का मौसम। जिस वक्त आप उस्फान और कुदैत के दरमियान पहुंचते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि बाद सहाबा शिद्दत प्यास की वजह से लोगों ने उनके ऊपर कपड़ा किया हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या हुआ? आपको बताया गया कि अल्लाह के रसूल रोजा रखा हुआ है, इनको प्यास लगी हुई है। और यहां इस बात को समझिए, मुकाम रसालत क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी रोजा रखा हुआ था, आपने पानी का प्याला मंगवाया, असर के बाद का वक्त है, आप निस्बतन एक ऊंची जगह पर खड़े हुए ताकि सारे लोग देख लें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सबके सामने उस प्याले के पानी से अपने रोजे को अफ्तार करवाया। जब नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा अफ्तार किया तो उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे इन रोजा अफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अभी हमारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, अभी थोड़ी देर के बाद रोजा अफ्तार करने का वक्त होने वाला है, गुरूब अफ्तार होने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने 3 दफा इरशाद फरमाया उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, उलाइकल उसात। आपने फरमाया ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग नाफरमान हैं। अजीज उस बात को समझ लीजिए कि जब नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, जब आपकी सही हदीस मिल जाए, फिर उस वक्त अपना दिमाग, अपनी अकल सब कुछ खत्म है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के सामने अपनी गर्दन को झुका दी। मर्र ज़हरान के मौका पर, वादी फातिमा इसके नाम है आजकल, जब नबी अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं, आपने हुक्म दिया, रात का वक्त आपने हुक्म दिया कि हर शख्स अलग अलग आग गिराए। अब कितने आदमी हैं? 10,000। वादी फातिमा बहुत खुली है, लश्कर सारा जो है 10,000 का लश्कर। आपने फरमाया कि हर शख्स अपनी आग जलाए। चुनांचे आग जलाने से क्या हुआ? पूरा इलाका रोशन हो गया। रात का वक्त और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सफेद खच्चर पर सवार होकर निकलते हैं। उनकी ख्वाहिश और तमन्ना क्या थी? याद रखिए कि हजरत अब्बास की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये थी कि ये कुरैश के साथ इंतहाई मोहब्बत करने वाले थे। अब इनकी तमन्ना क्या थी? इनकी तमन्ना ये थी कि कोई लकड़हारा मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए जो कुरैश के पास खबर भेजे कि मक्के के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के दाखिले से पहले पहले वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और आके माफी मांग रहे, अमान उनको मिल जाएगी। अगर मक्के के अंदर दाखिल हो गए तो हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। अबू सुफियान कभी कभार घबरा के वो रात को उठकर निकलता था, उसको डर था कि कहीं किसी वक्त मक्के के ऊपर हमला ना हो जाए। इस रात भी वो अपने साथ 2 और आदमियों को, जिनके साथ हकीम बिन हज़ाम और बुदैर बिन वर्का,
इन दोनों के साथ खबरें लेने के लिए बाहर निकला हुआ है। उसको दूर देखा उसने, वादी फातिमा के अंदर उसको चूल्हे जलते हुए नजर आए। पूरा इलाका जो है रोशन हो चुका है, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और अबू सुफियान कह रहा है कि खुदा की कसम, आज की रात मैंने इतना बड़ा लश्कर जो आज देखी है, इतनी आग देखी है मैंने, आज तक इतनी आग नहीं देखी है। तो उसके जवाब में बुदैल बिन वर्का आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बुदैल बिन वर्का कहने लगा कि ये लगता है कि बनु खुदा है, बनु खुदा के लोग हैं, उन्होंने आग जलाई है। और उसने कहा तेरी माँ तुम्हारी गई। बनु खुदा के लोग इतने हो सकते हैं? ये तो इतने ज्यादा लोग हैं। और फिर मैं करूं कि नबी अलैहिस्सलाम की ये आपकी प्लानिंग कामयाब होती है। अब चाहते क्या थे? अब चाहते थे कि कुरैश मरऊब हो जाए, उनको ये पता चल जाए कि मुसलमानों के साथ मुकाबला नहीं हो सकता है। इधर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के खच्चर के सवार होके तलाश कर रहे हैं कि आदमी मिल जाए। और इनकी आपस में आवाज गुफ्तगू आपने सुन ली। चुनांचे जब करीब हुए तो हजरत अब्बास ने कहा अबू हंजला, अबू सुफियान की कुनियत अबू हंजला थी। तो उसने आवाज पहुंचा, पहचान के कहने लगा अबुल फजल, अबुल फजल हजरत अब्बास की कुनियत। मैंने कहा अबू हंजला, लिखा अबुल फजल। मैंने कहा क्या बात है? अबू सुफियान के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। अबू सुफियान कहने लगा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। उसने कहा, अबुल फजल यानी हजरत अब्बास ने कहा आए ये कुरैश की तबाही, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर है। उसने कहा अब हीला क्या है, अब बताओ कैसे? मेरे माँ बाप, फिर वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि वल्लाह अगर वो तुम्हें पा लिया गया तो तुम्हारी गर्दन मार दें। और फिर उसके बाद साथ ही कहते हैं ऐसा करो तो मेरे खच्चर के ऊपर बैठ जाओ। हजरत अब्बास उन्होंने अबू सुफियान को अपने पीछे खच्चर के बिठाया और तेजी के साथ नबी अलैहिस्सलाम की चल पड़े। अब जिस जगह से गुजरते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है और ये आपके चचा हैं। हजरत अब्बास जा रहे हैं, जिस जगह से गुजरते जाते हैं लोग आपस में यही गुफ्तगू करते जाते हैं। हत्ता कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर के सामने से गुजरते हैं। तो हजरत उमर फारूक ने जब देखा अबू सुफियान पीछे बैठे हुए, कहने लगा ओ इस्लाम का दुश्मन। उसके साथ ही कहने लगे कि ये बगैर किसी अहद व पैमान के हमारे काबू में आ गया है। और अबू सुफियान कहने लगे कि इसको कत्ल करना है। उधर हजरत अब्बास उन्होंने उसको ढेर मार खच्चर को तेजी के साथ भगा के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले गए। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हजरत उमर फारूक के पहुंचने से पहले पहले जाके हजरत अब्बास कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने इनको पनाह दे दी है, अबू सुफियान को मैंने पनाह दे दी है। और उसके साथ ही हजरत उमर फारूक के अंदर पहुंच जाते हैं खाने के अंदर, अल्लाह के रसूल या अल्लाह का दुश्मन बनता जा रहा तो मैं इसकी गर्दन मार दूं। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि उमर मैंने इसको पनाह दे दी है। आपस में नोक झोंक होती है, दोनों अपनी जगह सच्चे थे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास अबू सुफियान को ले जाओ और सुबह मेरी खिदमत में पेश करना। अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने सब जब पेश आ गए तो आपने फरमाया कि अबू सुफियान तुम पर अफसोस, अभी भी वो वक्त नहीं आया है कि तुम ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू सुफियान ने कुछ थोड़े से रद्द-ओ-कद के बाद इस्लाम कबूल करने गया। मेरे अजीजों, नबी अलैहिस्सलाम की सियासत, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी की पर कुर्बान जाए, 1000 मरतबा कुर्बान। आपने भी तारीख का मुताला किया है, मैंने भी तारीख का मुताला किया है। ऐसे वक्तों पे क्या होता है, पूरी की पूरी बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम
नहीं चाहते थे कि इनके साथ तसादम हो और कुरैश उनको कत्ल किया। उनकी एक मिसाल बयान करके इंशाल्लाह बात को खत्म करते हैं, वक्त काफी हो चुका है। और वो ये है कि अजीजों, नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, अंसारी सहाबी हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हजरत अब्बास से कहा कि अबू सुफियान को एक ऐसी जगह पे खड़ी करो घाटी के ऊपर, जब लश्कर जा रहा हो तो पता चले। चुनाचे एक ऐसी जगह पे हजरत अब्बास और हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो खड़े हो जाते हैं। जो भी लश्कर गुजरता है पूछते हैं ये कौन है, फलां लश्कर है, फलां लश्कर है, फलां लश्कर है, फलां लश्कर है। तो जिस वक्त साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरते हैं तो उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो कहने लगे अल-यौम यौमुल मलहमा, कहते हैं कि आज खून रेजी और मार धाड़ का दिन है, आज हुर्मत हलाल कर ली जाए। मुराद ये है कि इवन तुम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी हो, कुछ अरसे के लिए थोड़े जुल्म किए हैं, थोड़ी ज्यादतियां की हैं, थोड़ी जंगें की हैं, आज वक्त आया है अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून रोजी और मार धाड़ का दिन है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वहां से जब गुजरते हैं, अबू सुफियान ने कहा अल्लाह के रसूल, आपने वो बात नहीं सुनी जो साद ने कही है? आपको जब बताया गया कि साद ने बात कही है कि अल-यौम यौमुल मलहमा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे झंडा लेकर उन्हीं के बेटे कैस के हवाले कर दिया। या फिर देखें कि बाप ने एक बात कही है जो नबी अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा साद इब्न अबादा से लेकर किसको दिया? साद के बेटे कैस के हवाले कर दिया, ताकि झंडा एक घर के अंदर ही रहे। ये ना हो कि झंडा किसी और के हवाले किया जाए तो इन बाप बेटे की दिल आवारी हो। अजीजों, दोस्तों, साथियों, अगर आप इजाजत दिए तो चंद मिनट के अंदर इस बात को खत्म कर लें। वाक़या इस्लामी लश्कर जो है वो कुरैश के सर पर पहुंचता है, तो अबू सुफियान के पास से जब गुजर गया सारा लश्कर तो कहने लगे अब हल क्या है? कहने लगे ऐसा है कि जाओ, भाग के जाओ। चुनाचे अबू सुफियान जाते हैं मक्का मुकर्रमा के अंदर, जाके बैतुल्लाह के अंदर ऐलान करते हैं, कहते हैं लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इतना बड़ा लश्कर लेके आए हैं कि तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, सरेंडर कर दो। और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफारिश से उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल इसको कुछ एजाज बख्श दें। आपने फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाए उसको अमान है, जो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाए उसको अमान है, जो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आ जाए उसको अमान है। अबू सुफियान ने कहा जो मेरे घर के अंदर आ जाए उसको अमान है। तो लोगों ने कहा अबू सुफियान तेरा घर कितना बड़ा है, तेरे घर के अंदर कितने लोग समाएंगे? कहने लगे जो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाए उसको भी अमान है। और इस मौके पर अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन्त उतबा वो उठती है, अबू सुफियान की मूंछों को पकड़ के कहने लगी मार डालो इस मोटे को, इसने हमें दरीड़ो ख्वार करके रख दिया है। अबू सुफियान ने कहा तेरी बर्बादी हो, देखो कहा कुरैश को कहा तुम्हारी जानों के बारे में ये औरत तुम्हें धोखे में ना रखे, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और अजीजों, नबी अलैहिस्सलाम इस हालत के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं कि आपकी गर्दन जो है वो झुकी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की हमद, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तारीफ याद करते हुए बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो आइंदा हफ्ते में सीरत पाक के इस हवाले से इंशाअल्लाह फतह मक्का के से ही यहाँ से ख़त्म किया है, इंशाअल्लाह आगे शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह बाकी के वाक़यात जो हैं वो आपके सामने आते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने फज़ल व करम से जो कुछ सुना गया है उसके ऊपर बयान करने वाले को भी और सुनने वालों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।